فرما طاہر افاری صاحب، ٹیپو بھائی صاحب، مجاہد صدیقی صاحب، علی جناب چاند بھائی صاحب، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردے پردہ سننے والے عزت ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ انتخابات کا دورہ ہے۔ آپ کے درمیان میں مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندے آتے ہیں، نت نئے سرسبز باغ لاتے ہیں، جب منتخب ہو جاتے ہیں تو راہ پرار اختیار کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے حلقہ یاقوت پورہ کا بھی یہی وتیرہ رہا، یہاں سے 20 سال سے منتخب ہونے والے امیدوار کا بھی یہی حال رہا۔ 5 سالہ منصوبہ ہوتا ہے، 5 سال میں 1 یا 2 مرتبہ دورے پڑتے ہیں اور حلقہ کا دورہ کیا جاتا ہے۔ اب رہا سوال مجلس کے فلور لیڈر عالی جناب اسد الدین اکبر الدین اویسی صاحب نے کل ریل بازار چمن پر تقریر کی اور اس تقریر میں یہ کہا کہ دارالسلام مسلمانوں سے چندہ مانگ کر خریدا گیا، اب جب پیسہ کم پڑا تو بہادر یار جنگ نے دیا۔ میرے بچے سب سے پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم کو دارالسلام کی خریدی کی تاریخ معلوم ہے؟ کیا دارالسلام کے وقت آپ کے دادا حضرت مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ تھے؟ نہیں تھے، کانگریس سے وابستہ تھے۔ جس کو دارالسلام خریدا گیا اس کو عبدالواحد اویسی کو تو دور تھے۔ عثمان علی خان کے دور میں بین المسلمین کے نام سے جس وقت یہ جماعت کی بنیاد ڈالی گئی تھی، اس وقت سب سے پہلے بہادر یار جنگ کے خلاف مردر نامے کا دستخط کرنے والی شخصیت کوئی اور نہیں تھی، عبدالواحد اویسی صاحب کی شخصیت تھی، جو نظام کے پاس ایک مردر دیے اور اس کو یہ بتلایا گیا کہ آپ کی حکومت کے لیے یہ خطرہ ہے۔ پھر اس کے بعد کارپوریٹر کا بلدیہ کا الیکشن ہوا تو مہاراج گنج سے کانگریس کے ٹکٹ پر عبدالواحد اویسی صاحب مجلس کے خلاف مقابلہ کیا۔ جس وقت دارالسلام کو خریدا گیا، بہادر یار جنگ نے اعلان کیا یہ ساری کی ساری رقم دے کر میں دارالسلام خرید سکتا ہوں، لیکن میری آنے والی نسلوں نے اس کو موریشیس نہ بنا لے، اس لیے عوام کو چندہ دینا پڑے گا۔ جب عوام سے چندہ مانگا گیا، سب سے پہلے نکلنے والی شخصیت کا نام تھا خاتم رضوی علیہ رحمہ۔ خاتم رضوی جیسے ہی یہ اعلان سنا کہ دارالسلام خریدا گیا ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے، تو خاتم رضوی صاحب اپنے گھر سے نکلتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ، آم کے جوڑے کے ساتھ نکلتے ہیں، گھر کو تالا ڈالتے ہیں، چابیاں لا کے بہادر یار جنگ کے حوالے کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اس کے اندر جتنا پیسہ، زیور، ساری چیز اور بلکہ گھر کے ساتھ کے ملت کے حوالے۔ اسی لیے خاتم رضوی صاحب کو صدیق دکن کا خطاب دیا گیا۔ پہلے خاتم رضوی تھے، جب یہ ایثار کیا تو صدیق دکن خاتم رضوی کہلانے لگے۔ اور آج یہ بچے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں۔ پہلے دادا حضرت سے پوچھو بیٹا، دادا جان کہاں تھے جس وقت بین المسلمین بنی تھی، دارالسلام خریدا جا رہا تھا، کہاں تھے عبدالواحد اویسی صاحب؟ ان کا بین المسلمین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر نظام نے بہادر یار جنگ کی بین المسلمین کے اوپر اعلان کیا، جتنے بہادر یار جنگ کی جماعت سے وابستہ ہے ان کی جاگیریں کھینچ لی جائے گی، ان کی منصب کو کھینچ لیا جائے گا۔ جتنوں کو دنیا عزیز تھی سب بھاگ گئے، بہادر اعظم اکاو تنہا رہے۔ پھر اس کے بعد ایک جلسہ پلے گراؤنڈ پر میلاد النبی کے عنوان سے ہوتا ہے، میر عثمان علی خان کو مہمان خصوصی کی حیثیت سے مدعو کیا جاتا ہے۔ جب وہاں پر بہادر یار جنگ سیرت النبی میں تقریر کر
मीर उस्मान अली खां की आमद हुई तो सारी रियाया उठकर फर्श की सलाम करने लगी। तो बहादुर यारजंग ने कहा जो जैसी हालत में उठा वैसी हालत में बैठना चाहिए, इसलिए कि ये जिसकी शान में जलसा हो रहा है ये उसका गुलाम आ रहा है। उस वक्त के शाह से यह कहा जा रहा है, मीर उस्मान अली खां को कहा ये जिसकी शान में जलसा ये उसका गुलाम आ रहा है। आज की क़ियादत कोई चीफ मिनिस्टर अगर तो आइए आका, खजूर खाइए आका, ये कौम का वतीरा करने वाले। हाँ मुसलमानों, आज के नौजवानों को मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तारीख नहीं मालूम। फिर उसके बाद में मीर उस्मान बहादुर यारजंग को इजाजत दी गई आप अपनी सियासी जमात बनाइए, तो सब मसलकों के लोग मिल गए थे। एक मसलक से कोई नुमाइंदा नहीं मिला, शिया हजरात की तरफ से कोई नुमाइंदगी नहीं मिली थी। तो मीर उस्मान अली खां को बहादुर यारजंग ने एक खत लिखा, लिख के कहा हमें कोई शिया नुमाइंदा चाहिए। तमाम मसलक से वाबस्ता लोग मिल गए, शिया नुमाइंदा नहीं मिला। तो मीर उस्मान अली खां ने अल्लामा रशीद तुराबी साहब के नाम की तजवीज पेश की। अल्लामा रशीद तुराबी साहब ने उसको कबूल किया। फिर उसके बाद एक गुलदस्ते, एक कलमे की बुनियाद पे गुलदस्ते का ऐलान हुआ। तब जाकर दारुस्सलाम की खरीदी का मामला हुआ। जब दारुस्सलाम को खरीदा गया तो कौम से यह कहा गया सारी की दौलत दे सकता हूँ दारुस्सलाम की खरीदी की, मगर आने वाली नस्ल ये न समझे ये मोरियत हो जाएगी, इसलिए आपको चंदा देना पड़ेगा। तो ये वो शक्ल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है। बैनुल मुस्लिमीन से नाम हटाया गया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम रखा गया। और फिर इस जमात से वाबस्ता अशखास की क्या जिम्मेदारी थी? अगर इस मदबस्ती की कोई सदर बनता है तो उसको शक या की राय से पुरानी मत तर्जुमा याद करना, हफ्ते में 24 आयतें पुरानी मत तर्जुमा याद करना और सुनाना। 3 महीने तक ये सिलसिला लगातार रहेगा। फिर उसके बाद उसको इब्तदाई का सदर बनाया जाता है। आज पैसे कैसे है? लैंड गिरावट, जानी, शराबी, जुआरी, लैंड क्लब का मेंबर, कौम की जात को लूटने वाला, अल्लाह की जायदाद का सौदा करने वाला, इस जमात से वाबस्ता मिलेगा। अरे हद तो यह हो गई, ये जो नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स का मटेरियल आता है, इन स्पोर्ट्स के मटेरियल को हर एक कारपोरेटर के लिए 2 लाख रुपए का स्पोर्ट्स का सामान आता है, वो भी बेच के खा रहे मेरे भाइयों। आपके पास भी एक स्पोर्ट्स तबेले में चलता, जाइए उनके जिम्मेदार से पूछिए क्या आपको स्पोर्ट्स का मटेरियल मिला? नहीं। एक किट की कीमत 11,000 रुपए है तो 4-5 हजार में बेच रहे। 1-2 बच्चे को देते, बाकी का माल खा जाओ। बरसात आने वाली है, नाले का बजट कैंसिल हो गया, नाला साफ नहीं, चूरा हो रही, ये आपके कायदीन। और फिर यहाँ के बड़े खाए 50 की किट ले लिए, जाकर पूछ लीजिए। ये बात आपको गलत नहीं बता रहा हूँ, हकीकत का आईने आपको बता रहा हूँ। क्या होगा? तो बहरहाल आप लोगों से यही मेरा मुतालबा है, सच और झूठ को महसूस कीजिए, मकरो फरेब को देखिए। ये इंतखाबात की शक्ल में आते हैं और कहते हैं हमने बीजेपी से पैसा लिया। तो आओ मुसलमानों, इनकी मांडोरी आपको बताता चलो। अंबरपेट से किशन रेड्डी से मांडोरी हुई और कहा कि तेलुगुदेशम बीजेपी का अलायंस हो गया, मलकपेट से तेलुगुदेशम को नहीं देना, बीजेपी लेना। हम किशन रेड्डी के खिलाफ और मुकेश को हराने के लिए हिंदू नुमाइंदे को मिनरिज का टिकट देंगे, वो मुस्लिम वोट काटेगा तो किशन रेड्डी तुम गिर जाओगे और मुकेश हार जाएगा। जाहिद अली खान का पदन आमिर अली खान को राजशेखर रेड्डी का बच्चा किरण कुमार जगन मोहन रेड्डी ने सिकंदराबाद से उम्मीदवार की हैसियत से उनको भेजा। वो अपने काम कर रहे थे, लेकिन इनको यह खतरा महसूस हो गया
जाहिद अली खान की तरफ से मुसलमानों को तालीमी मैदान में और गवर्नमेंट में मुलाजिमत के लिए सारी ट्रेनिंगें दी जा रही है। मुसलमान लावारिस लाशों को तस्कीन का काम किया जा रहा है। तो इनका बच्चा वहां से जीत गया तो फिर मेरा काम पार्लियामेंट में करेगा। अजान के बाद फिर इंशाल्लाह आपसे मुखातिब होगा कि तुमने कटाया, वहां से हिंदू उम्मीदवार को तुमने टिकट दिया सिकंदराबाद से। अगर आप हकीकतन चाहते हैं एमपी की सीट तो चैलेंज के साथ कहता हूँ वहां से एमपी जीत सकता है हमारा। फिर पलट कर आइए नामपल्ली से फिरोज खान का टिकट तुमने कटाया। नागेंद्र से कहा गया तुम नामपल्ली से फिरोज खान को टिकट नहीं देना, हमारी सीट को धक्का लग जाता, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ खैरताबाद में उम्मीदवार खड़ा कर दूंगा। खैरताबाद में 2,40,000 वोटर है जिसमें 1 लाख मुसलमानों की आबादी है। उसको डराया गया कि तुम्हारा पूरा किला खेमा हो जाएगा, तुम ना यहाँ से फिरोज खान को टिकट नहीं देना। फिरोज खान का टिकट कटा है, वो तेलुगु देशम बीजेपी की अलायंस से लड़ रहा तो भी परेशान है। और वहां से हैदराबाद से एक नौजवान आता है और कहता है कि यहाँ के लोग मुस्लिम क़ियादत के लिए दिल दिलाते हैं, तो मैं आपकी जमात से लड़ने के लिए तैयार हूँ। उसने सारे अज़ाइम बतलाए, हमने हमारा तरीक़ेकार बताया, तब जाके वो तैयार हो हम हैदराबाद से उम्मीदवार को खड़ा करें। जुबली हिल्स के अंदर जहाँ पर बोरामुंडा सुल्तान नगर मुसलमानों का याकूतपुरा अगर पुराना देख रहा है तो बोरामुंडा जाकर देखो पुराना याकूतपुरा नजर आएगा। वहां से किसको दिया? चिन्ना श्री चिलम के बेटे को। ये मुसलमानों एक नवाब का खत्म करा, 7 घर के एक घर के 7 खानदान के लोगों का खत्म किया। चिन्ना श्री चिलम के बच्चे को तुम टिकट दिए, ये आपका भाई चचेरा भाई है। मुसलमानों की जमात अभियान को टिकट देते हो और वो चिन्ना श्री चिलम का बच्चा घर फिर रहा है, हमारी मुस्लिम खवातीन के हाथ मिला रहा है। फिर पलट कर देख लीजिएगा हल्के याकूतपुरा के अंदर 18,000 बोका चोटर, चंद्रन गुट्टा में 22,000। अब बोका चोट कैसा? देखो मुसलमानों, इस हकीर दुनिया के लिए मुसलमानों के जज्बात से कैसे खिलवाड़ किया जाता है। एक औरत 17/5 की है, वहां पे अपने शौहर के नाम पे है। दूसरी वही औरत 17/4 में आई तो शौहर का नाम बदल दिया गया। 17/6 में आई तो एक और शौहर का नाम बदल दिया। एक औरत के 3 शौहरों को बदल कर बोका चोट बनवाए गए, जिसको डिलीट किया जा रहा है। शरीयत के अंदर मुदाखलत, मिल्लत इस्लामिया के जज्बात के साथ खिलवाड़, उनकी आखिरत के साथ खिलवाड़, मेरी मां और बहनों से मुआत्तिबा नसात है। रोज़े महशर अल्लाह के पास जवाब देने से बच जाइए। हराम है, हराम है, हराम है। दूसरे के नाम का और डाला हराम है। का निशाने इम्तियाज भी ऐसा अल्लाह ने अता किया कि हमको बताने की भी जरूरत नहीं, हर घर में मौजूद। तुमको लगा लगा के बताना पड़ रहा, लाइटा लगा के हमारा निशान खींच रही, कंगन से कटेंगे, लुट भी नहीं सकेंगे, फटेंगे, याद रख लो। जोर से तो भी कटे तो बच्चे पकड़ के चले तो पतन तो बाकी रहती, लेकिन अब की बार कंगन से कटेंगे, लुटे भी नहीं जाएंगे, फट जाएंगे। याद रखो, हमारा निशान इम्तियाजी टीवी है, टीवी है, टीवी है। टीवी के निशान पर बटन दबाइए, यहाँ से 20 साल जाकर क़यादत की जमानत जब्त कीजिए, यहाँ जिंदा कब्र बाकी।